हेलो। ओके, आवाज़ आ रही है अभी। इट्स गुड, क्योंकि आवाज़ कभी आती नहीं है मेरी रिकॉर्डिंग में। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल। I hope you are doing fine, and tell me whether it would be better to speak in English or Hindi, because I don't know from where you belong. So whether I should speak in Hindi, English, Gujarati, Marathi, Telugu. Yeah. Comfortable with both English. Okay, Pratyusha is saying that uh, she is comfortable in English. Okay, so I'll go for English. If anyone is still having any problem, we can switch to Hindi. Okay, there is no problem. And please, guys, just be quick. Okay, it's a very short session. We are not going to be like 1 hour session. It's just till 6:40, 6:45. Okay, so tell your friends to join quickly. And please start writing down your questions or just speak up. First one. Good evening. Good evening, Rahul. Yes, questions. I am saying good evening, but I'm not seeing any questions. So I want something. Which stream is stream? I mean, are you talking about subject? Stream. You should say subject is not life sciences or bio. Okay. फायदा क्या है गेट का? आयुष सर पूरा वीडियो बना चुके हैं हम। राहुल हमने पूरा वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। Please, it's okay if ये you haven't टूल्स watched it, but you can still go and check it out. It's okay. So, still, in brief, you will get a lot of benefit from Gate. Here, for our concern, we can say that yes, you can get your what do you say? You can qualify for sitting in that NIPER JEE exam. Right? Chemistry से भी कर सकते हैं? No, I don't think so. Because there has been, as far as I know, जितने भी जगह पे देखा गया है ना, तो लाइफ साइंसेज या फिर बायोटेक. What do you say, Ayush, on this question? और फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ये दोनों ही बेटर है। इवन बायोटेक से भी बेटर लाइफ साइंसेस रहेगा। Yes, yes, undoubtedly, because bioscience, बायोटेक में क्या है कि पूरा मैथमेटिक्स और थोड़ा वो कोर बहुत हो जाता है. So it's a bit difficult, and unless and until you want to go for totally different, I mean, like you want to go for biotech in MTech in IIT or such reputed institutions, you should not take it. If you want, if your goal is just to qualify for NIPER or just to go with other streams, then you should choose life sciences. लाइफ साइंसेस में केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड कंपलसरी है, उसके बाद दो सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाहिए? ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन ईशान. सो द थिंग इज nothing is absolute here. Okay, let me tell you guys my story, and then I'll switch to that subject. That you all know that I'm good with plants and related studies, right? So I when I was going to give my gate exam, so I thought that of course I will go for botany, obviously, and then I thought that I will go for some other things like zoology or biochem or anything like microbiology is also there. So and when I saw the paper, and it was very much different from what I thought.
So then I switched my subject to from biochem or microbiology or something like that to food technology at the time, at the moment of when I was giving exam. So it is totally up to you uh, that what you want to do. But I would say at least see सबका एक forte होता है ना, that some people are good at zoology, some are good in biochemistry, that calculations of ATP and all, and then some people are good at microbiology, remembering the names of microorganisms. Some are good at botany. So you should at least out of two, one should be of your interest, and you should have studied it thoroughly, at least one subject, and then the other one you can choose as per your convenience. But out of that five subjects, at least one should be your forte. Otherwise, you won't be able to get into it. That's what I think. Study other things as well, like chemistry and aptitude. Are obviously they're important, but this you will get good marks from that. एप्टीट्यूड में कैसे स्कोर करें? एप्टीट्यूड में देखिए ज़्यादातर इतने क्या बोलेंगे, इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से सवाल होते हैं, जैसे आउट ऑफ कितने होता है इसके अंदर, जितने भी आई मीन क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मैं बोलूँगा 20-30% क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू ग्रैब, लाइक मैथ जस्ट फॉर qualifying. 50 mark 10 questions, right? So out of that I would say 4 or 5 questions are easy to get, like basic mathematics, like ratios or something is given and then you can go for it. But the that rational thinking approach in that, they can, you know, uh, just make you confused. So out of that I would say 4 or 5 questions would be very easy, not that much so just focus on that, and then you can go for it. Total, how many questions are there? So there will be 10 questions of this aptitude, say, then 19 plus 19, right? Yes, total 38 plus 10, 48, and mm, I don't know why I'm forgetting. Ayush, can you help me out here? 65 questions, right? Yeah. So just for कॉलेज कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? Okay, it depends on, totally depends on the subject you are taking. Okay, if it is chemistry, there are like 10 to 15 questions are there, so at least half of it should be attempted. You should go for subject wise, aptitude और chemistry के अंदर, और at least half of it should be attempted. और जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके फोर्ट है, आपने क्योंकि उसके अंदर आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है. So, I understand English, but please speak in Hindi. The all Indians are so okay. तो आपने प्रिपरेशन किया है ना दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, तो उसके अंदर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, करने की कोशिश करें, क्योंकि देयर 19 क्वेश्चंस. तो जब मेरे टाइम में मैंने ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, और तभी आपके वो बेस लाइन बोलते हैं ना जो, कि उससे आप आगे जा सकते हैं, ताकि आपका अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए उसके अंदर. MSQs, one of the most difficult things to get. And what subject choices are there for life sciences? Okay. So let us answer Dipali's question first, very basic. So there are 5 subjects, Dipali. First is botany, second zoology, biochemistry, microbiology, and food technology. And you can choose maximum 2 out of that. Okay. MSQs क्या होता है? So MSQs are multiple selection questions, right? So there will be a question given to you, and
you have to select one or more question that options out of that multiple selection. That's why it is called multiple selection. And if you will not give the exact amount, like if there are three right answers and you select two or four or one, then you won't get any mark. Negative markings are not there. There is no negative marking for MSQ. कोई negative marking नहीं है MSQ या न्यूमेरिकल आंसर टाइप में. पर ये ध्यान रखना कि आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखें, पढ़े और उसमें से एग्जैक्टली उतने ही चूज करें जितना आपको बताया जाता है. ठीक है, कि जितना चूज करना है उसके अंदर कि अगर उन्होंने बोले कि प्लीज चूज द अप्रोप्रिएट आंसर as per you think, then if there are three options, then you have to choose exactly three, otherwise you won't get any mark. Negative marking won't be there, but it is a one or two marks question, so we can't let it go. Points, even in marks, are important now. In points, point 2, point 4, you can go, the rank can go way beyond. बहुत सारे questions आ रहे हैं anyways. I hope I have not missed any. Ayush is here or not, I don't know. Anyways, so Ayush, you there? Can you just okay. आशमा, हेलो. सर पैटर्न कैसा है थोड़ा बता दीजिए, आइडिया नहीं है गेट का. ओके. So currently I don't know why I'm forgetting the number of questions which are asked, but I can tell you that how the paper style is, right? So there are three type of questions, that is MCQ, MSQ, and NATs. I'm writing it down, right? So MCQ, that is multiple choice question, जो आप इतने सालों से करता है. You guys know everything about MCQ. I don't have to say anything. That one question is there. There will be four options. You have to choose one, any one out of it, and it will be of 1 or 2 marks. And if it is wrong, then there will be negative marking accordingly. Yes, MCQs में negative marks होते हैं according to their selection. If they say it is a 1 marks question, then there will be 1/3, so 0.33 marks will be cut. And if it is a 2 marks question, then it's a 2/3, or 0.66 out of 2. You will then there will be negative marking, so it will be minus, you will get minus 0.66 if it is wrong. So which one is easier to qualify? कट ऑफ कितना होता है इसका, वो पहले बात करते हैं. कट ऑफ आई गेस लास्ट टाइम था लाइफ साइंसेस के लिए 33 पॉइंट समथिंग, सो अराउंड 34. This time it can go up because more and more people like you are getting aware about it, so more people will give it, and then cutoff can go up 35, 30 के आसपास. Category wise, yes, everywhere is categories. Yeah, 30 to 35. We can take a range, but I guess it can go more than 34. 30 तो नहीं जाएगा, I don't think. But number of questions are 65, no? Yeah. 19 plus 9, 38, and then there is 15, right? Okay. Yeah. Number of questions 65. हाँ. So MSQ का मैंने बताया आपको, multiple selection question. There will be no negative marking for it, but it is very tough to get because you have to select exactly two, exactly three, exactly one. Even one can be given. It's not like that. Even four can be given. It's up to them. And it will be mostly more than 1 marks question, so it will be 2 marks question. Mostly it is like that. So be very careful, guys. You have to select everything, I mean every question out of MSQs and NATs, but be very careful
because you won't get any mark for it even if you think and waste your time, right? So please be very careful. And NATs, it's a numerical आंसर टाइप, मोस्टली बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंदर जो कैलकुलेशंस आती है उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस या एप्टीट्यूड के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल आंसर वो देना है। अगर उन्होंने बोला है कि 2 पॉइंट तक बोला है कि 2 डेसिमल पॉइंट्स, देन इट इज, इफ इट द आंसर इज 2, if your answer is coming 4.257, then you have to convert it to 4.26, and then you have to give it because 2 decimal points, otherwise they won't give you marks. MSQ के 2 marks है मोस्टली, ऐसा ही हाँ, जितने भी MSQs है मोस्टली आई हैव नॉट सीन एनी MSQ दैट is 1 marks MSQ. I don't think it is that. What are MSQ? MSQ is multiple selection questions, and NAT is numerical answer type, which is a sum calculation. So, did we get any stipend after qualifying this? Yes, exactly like GPAT. That is 12,400 rupees per month after you, if you apply for a master's program throughout the which बहुत सब एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, हाँ हाँ, इट्स वेरी इंटरेक्टिव सेशन राइट। टोटल हे भगवान बहुत सारे क्वेश्चन है, जस्ट प्लीज वेट, ओके। So other question, which one is easier to qualify? Okay, so how to do it? See, GPAT is having a vast syllabus. Okay, थिंग इज वास्ट सिलेबस मतलब बात ही जाने दो, आप लोग कितने सारे सब्जेक्ट्स आप खुद पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड बट द एग्जाम पैटर्न इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू क्रैक। इट्स वन MCQ, 4 marks, and then simple. But the gate, even of gate has a, it has a lengthy syllabus but not to the extent as comparable to GPAT. But the question pattern, exam pattern, is the one which makes it different from any other examination. Because three type of questions are there, and then it's very difficult to crack. So that the strategy is very important in GATE. So that's why I would say if you are good with pharmacy, then GATE is difficult to crack. Okay, but you can do it if you have the concepts clear. Basic concepts ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 8 to 12 के concepts ही होते हैं, so it's not a big deal. So that is the thing. Let me check whether my mic is working or not. Otherwise, every time so difficult. Did we get any stipend after qualifying this? Yes, definitely. Is any admission in IIT PHU is not considered from this? The thing is, even if IIT considers, no, they will take another exam. Even if you go for GPAT, GATE, they will take another exam of their own, and then don't care about the other things. So you have to give another exam. It's usual with any other big institutions, right? MSQ will be like which of the following is a diuretic agent? Very good example you have taken: acetazolamide, furosemide, amiloride, and montelukast. Wow. So almost all of them are right, but montelukast is not diuretic. So you have to select three. Yes, three. So we have to select one ABC. Yeah. Yes, you get a calculator in that interface. When you give the exam, online exam, there will be a calculator available for you, so don't worry about it. ABC, very good. So sir, weightage MCQs का ज़्यादा होता है as compared to yes, there are more number of questions now. MCQs have more number of questions in that thing. Some of them will be, very few of them will be MSQs and NAT, and the other ones mostly they will be MCQs. So yeah. And लास्ट टाइम क्या फीस थी? ओके, फीस का मुझे भी इस बार का पता नहीं है। लास्ट टाइम 1500 पर पेपर, 1500 रुपीज। Is there admission in IIT BHU for GATE? Okay.
यस लाइफ साइंसेस ओके दिस टाइम 1700 कर दी वेरी गुड लाइफ साइंसेस में कंपलसरी कौन से सब्जेक्ट होते हैं ओके और किसी ने एक भी पूछा था कि कौन से सब्जेक्ट टोटल होते हैं आई गेस दीपाली ने ठीक है तो मैं फिर से बता देता हूँ देयर इज जनरल एप्टीट्यूड एंड chemistry that is compulsory ना लास्ट में कौन आ रहा है भाई general aptitude and chemistry that are compulsory then there is botany zoology biochem micro and food tech इसमें से कोई भी दो आप सिलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम you can go for one if you don't know the other but of course you should go for other one otherwise how will you be able to get qualified right so that's the thing any other question you can speak up it's not like that you just have to type down everything and Ayush sir I don't know where he is correct students if you get select AB only or AC you'll get a zero you have to choose but you won't get negative marking but at the same time you are losing your 2 marks so think accordingly AB पर भी zero yes AB पर भी zero A पर भी zero ABCD पर भी zero trick Ayush sir please take this question कौन सा ट्रिक वाला? yes it's a tricky question you know so हाँ, तो कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, एक ही ट्रिक है, जो उनका सर्वर है उनको हैक कर दो और फिर एनटीए की साइट नहीं है ना कि कर सके करेक्ट। अभी ज्यादा तो बोल गया इतना नहीं बोलना था हाँ सो Shivangi is asking how much we have to score for qualifying a number of questions to qualify. How much do we have to score? So I already said that it would be around 34, more than 34 I would say. It it definitely it will be. Plan for studying to get see. So basically general aptitude we don't know what will be asked right that you have to think at the time of that you have to have basic mathematics in your head and you have to be a bit of creativity you have to have creativity right that to think of for with different angles look at the question okay other thing talking about chemistry the more you know about the reactions and all the more you know the core of chemistry then you can go for it and just select only ones which you are sure of because chemistry is a very difficult thing to crack there will be very tricky very much tricky questions another thing as I said earlier then go out of two that subjects at least one should be thoroughly clear that what is asked what is not asked go through all the previous year questions they won't ask from that but you can get an idea that what is being asked which portion is very much it's covered more in the questions and what else is not like if we talk about botany then there is photosynthesis there is uh, industrial botany we can say which kind of plants are used in industries right so these kind of questions are asked biochemistry में ATP की calculations पूछी जाती हैं so that is the thing सर, yes आई वांट टू आंसर 2-3 क्वेश्चन। yes definitely go for ओके, it तो I'm speaking a lot today so किसी ने पूछा है कि प्लान फॉर स्टडी टू गेट मिनिमम मार्क्स, लाइक yes क्वालिफाइड होने के मार्क्स। अगर क्वालिफाइड होना है आपको तो ऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों अच्छी तरह कर लो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देयर इज 90% चांस कि आप हो जाओगे क्वालिफाइड गेट में भी। mm-hmm. और एक ऋतिक का क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, तो ऑर्गेनिक, सॉरी, केमिस्ट्री सेक्शन में क्या होता है, तो गेट के केमिस्ट्री सेक्शन में ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री,
आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, दैट इज क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर वगैरह, वो भी इंक्लूडेड है गेट के केमिस्ट्री सेक्शन में। हम्म। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं लाइफ साइंसेस आप चूज करो, क्योंकि ये सब आपको जीपेट के लिए तो पढ़ना ही है, और साथ ही साथ आपका गेट का भी हो जाएगा। करेक्ट। और हाँ, बाकी करेक्ट। जनरल एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो आपकी बैच में सेम रहता है, मतलब आपका जो टाइमिंग स्लॉट रहेगा ना, तो वो सबका सेम रहता है, इंजीनियरिंग वालों का भी और आपका भी। यस, एंड इवन केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक भी ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम 8 9 10 basic chemistry to the as sir said that this what you have studied in your GPAT or during the years of B Farm, it is also included. So you can select lot of questions out of it with just basic knowledge of chemistry. But still, be careful. Okay. Uh, Sir, after qualifying GATE, if we go for other colleges, then are we getting stipend? Yes, obviously. As yes, yes, GATE. See, GATE is for every college, and if you do masters on the basis of GATE, you will get a stipend of 12,400 rupees per month. Okay, any college of India, at least. And I hope I've answered your questions, Rahul. So 10 question, 15 marks aptitude. I don't know why I just suddenly I've forgotten. I knew it, but suddenly I forgot. There are 19 questions from each subject, right? That selection, I guess 19 or something like that. 38 marks are there, so that I remember. Uh, 38 plus 38, something. 4 to 19. Yeah, it's like that. Total four subjects, yes, correct. Now Deepali is very clear in this. General aptitude, chemistry, that are compulsory, and other two, correct. Out of five, two you can select maximum. And other the person who was calling me today, why he hasn't asked me yet that what problem are you facing while that form filling, that 2022 or something like that. Can you speak up? I don't know the name. Are you here? Okay. I don't know the name actually. He had called me today. Gaurav, I guess. Gaurav? Don't know. Anyways. फूड टेक में क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता है, यस इस बार था एक्चुअली फूड टेक्नोलॉजी में रिलेटिवली इजी। सो मैंने बोला ना, मैं अपने खुद की स्टोरी मतलब वहां जाके मैंने चेंज किया बिकॉज इट वाज वेरी इजी, सो आई just selected almost I would say 95% of the questions out of food tech, and that has helped me a lot. But still, once you reach the exam hall and just see the question paper, go through it and just quick scan that where what from which section you are getting maximum number of marks you will be extracting, and within short period of time. So that will help you a lot. Strategy is very much important. वो सॉल्व हो गया था मेरे ईयर वाला प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन क्या था वो तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। ओके। हेलो सर सोहम। हाँ। सोहम सर, अनदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, दो यस। तीन बार पूछा है बच्चों ने ओके। कि जो अदर कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, माइक्रो बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, हाँ बायोटेक नहीं सॉरी, बायोकेमिस्ट्री, हाँ हाँ माइक्रो, हाँ। फूड टेक्नोलॉजी, और चार सब्जेक्ट जो कंपलसरी नहीं पांच। है। हाँ। हाँ,
उसमें आपको अभी सिलेक्ट नहीं करना है फॉर्म भरने के टाइम। जब आप नहीं। वहां पे एग्जाम में बैठे होगे, वहां पे आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। हाँ। आपको जो सेक्शन अच्छा लगे, अगर आप सोच के गए हो कि मेरे को बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी करना है, और आपको माइक्रोबायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी इजी लग रहा है, तो आप वो कर सकते हो। आपको सिर्फ उधर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट यस। फाइनल किया। Yes, that is the beauty of the exam, right? That हम्म। you can. No, no, session is not done, Sakshi. People are just going on and on and on. It's good, it's good. I'm not saying it in a negative manner, but yeah. So, perform में selection किया already. What? फॉर्म में कहाँ आता है मतलब वो Actually, I don't सिलेक्शन का? think, sir, why this is आया है. चेंज किया क्या इन्होंने It टाइम? can be actually इनका अभी 1700 रुपये लेके फिर कुछ भी कर वो सकते हैं. सब्जेक्ट्स का बताया, मतलब बहुत सारे लोगों का डाउट आया था कि Uh, कौन से सब्जेक्ट देने हैं, ये तो हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है तो टफ पड़ेगा, ऐसा सब है। No, हमारे टाइम नहीं आया था ऋतिक. That's why we are very much in dilemma. क्या? ऋतिक is saying that आपके टाइम भी आया था क्या? तो मैंने कहा नहीं. That we didn't have that thing. तुमने बताया लाइफ साइंस के अंदर वो पार्ट्स रहते हैं 6, वही हमें देने हाँ, हैं वो सब एंड चीजें बताई है, पर ऋतिक पूछ रहे हैं कि आपके टाइम भी आया था क्या कोई ऐसा ऑप्शन कि पहले से सिलेक्ट करना है? ऐसे आप देख सकते. अच्छा, आप लास्ट में ज्वाइन हुए ना. ओके. तो ऋतिक अच्छा पूछ रहे हैं कि आपके टाइम भी आया था क्या ऐसा कोई सिलेक्शन के लिए? तो मैंने कहा नहीं, मैं ना बोल रहा हूँ उनको. एंड जेड इज आस्किंग दैट देयर ऑप्शन इन फॉर्म टू सिलेक्ट द बायोकेम एंड माइक्रो. न एक्चुअली ऐसा हो सकता है मे बी कि लाइफ साइंस के अलावा इन लोग बाकी सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। देयर इज आल्सो पेपर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लाइक जैसे लाइफ साइंस का पेपर है वैसे बायोकेमिस्ट्री का भी एक पेपर होता है। बहुत सारे पेपर्स होते हैं, इंजीनियरिंग का पेपर होता है, केमिस्ट्री का पेपर होता है, वैसे बायोकेमिस्ट्री का भी पेपर होगा। तो वो मत देखो आप लोग, खाली उसमें देखो, लाइफ साइंस के अंदर देख लो। मेरे फॉर्म फिलअप में ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर करना एक्चुअली हाँ, पड़ेगा। क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या कहाँ पे कर रहे हो, इस मतलब गलती कर रहे हो. फॉर्म फिलअप किया नहीं आया ना, सिर्फ लाइफ साइंसेस आया ना गौरव? कैन यू से लाइफ साइंसेस करना है या दूसरा? एक्सेल आया ना? एक्सेल. ओके. गुड. यू हैव टू सिलेक्ट द दैट कोड. सिंगल ऐसा पे. आता है ऑप्शन हाँ. कि आप लोग 2 पेपर देना चाहते हो या 1 पेपर देना चाहते हो, आप लोग हम्म. उसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो दो पेपर अलग चीज है और दो सब्जेक्ट अलग हाँ चीज है, ठीक है? हाँ हाँ। डोंट गेट एक कंफ्यूज्ड. हाँ. हम्म। सो दो पेपर जो देना चाहते हो वो दे सकते हैं. मैंने खुद ने दिया है तो इट्स ओके. बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर सिंगल पेपर, सो जस्ट सिलेक्ट वन एंड गो फॉर इट. ओके. द ओनली लाइफ साइंसेस एक्सेल. वेरी गुड. यू आर क्लियर. So there won't be any further option in that. दो paper, yes, you can see. There are groups assigned to every subject. Like if we talk about life sciences, you can give an additional secondary paper. Out of they have given a list of subjects. I had also talked about it in my gate video. That is biochemistry and biotechnology, ecology and evolution, chemistry, etc. Out of that you can select another additional paper if you want to give. It's not compulsory. Okay. Minimum one, maximum two. So at least you have to give excel, that is life sciences. Additionally, if you want to give, then you can go for it. Yes. So that is the thing. Yes, Sakshi, your voice. अच्छा, हाँ. स्क्रीन दिख रही है हाँ, जो स्क्रीन मैं दिख शो रही की है. थी? यस, यस, यस. हाँ, देखो इसमें कितने सारे पेपर्स है। गेट एक्चुअली कॉमन एग्जाम है, बहुत सारे कैंडिडेट्स देते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो हम्म. एमएस इन केमिस्ट्री वाले ये केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट देंगे, और हमें ये लाइफ साइंस देना है। लाइफ साइंस में हमें ऑप्शन 5 या 6 सब्जेक्ट में मिलता है, वो हमें पेपर देते समय क्वेश्चन देखने मिलेगा, अंदर अंदर. उसमें हमें देखना है लाइफ साइंस। So don't worry that. That's why I'm also confused that why they have suddenly changed the pattern that we have to select and everything. So someone has that their option in form to select the biochem and micro. Zaid, can you please explain what are you talking about?
Speak up. I'm not getting your point. Unmute. Zaid. Yes, yes, you can speak. There's no any issue with that. It will be better if you speak because we are not able to understand what you are trying to say. Don't be afraid. It's just a regular session, one-to-one interaction. Okay, we are not here to. I have filled the gate form in Excel Life Sciences. I guess you're talking. There's option to select any two subject out of four. Right? Sakshi, please. एक्चुअली गाइस आप लोग जो बोल रहे हो अगर वही राइट चीज है तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। Then we have to हमारे टाइम check. पे कैसा हुआ था कि बेसिकली हम लोग लाइफ साइंस ही सिलेक्ट किए थे और मुझे भी ऑप्शन मिला था कि मैं सेम डे पे 2 पेपर दे सकती हूँ। लेकिन दैट वाज नॉट लाइक कि माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, इट वाज लाइफ साइंस के अलावा एक और पेपर मैं दे सकती हूँ जो मैंने नहीं चूज किया था, जो शायद सोहम सर ने चूज किया है। Yes, yes, आपको समझ आ रहा है? yes, yes. और I लाइफ had. साइंस के अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड Botany, एप्टीट्यूड zoology, ऐसे ऑप्शंस मिलते etc. हैं। Yeah. उसमें 2 कंपलसरी है, एप्टीट्यूड एंड लाइफ केमिस्ट्री, और बाकी सब में आपको चूज करके 2 सिलेक्ट करने हैं। तो अभी आप लोग जो बोल रहे हो वो शायद चेंज्ड पैटर्न है या तो आप लोग को मिस अंडरस्टूड हो रहा है पैटर्न। Please share the screenshots of your that form, whatever you have filled, because we are not. हाँ हाँ See, नहीं आया almost all of you. आपको ऐसा तो जैद ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वहाँ उन लोगों ने ऐसा बोला हो किसी there are 2 compulsory subjects and 2 no that optional subjects, ऐसा उन्होंने देख के नहीं दिया ना? ऐसा आया था क्या कुछ? Because they won't change the pattern suddenly. I don't think it's a very huge thing to do. Actually, it can impact a lot on the marks and all. So सर ये जो क्वेश्चंस देखने के चांस होता है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है या फिर देख सकते हैं at लाइक the सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस? like what सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसा तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको मतलब बायोकेमिस्ट्री का देखना है तो आपको 15 मिनट या जो भी मतलब ऐसा नहीं है कुछ, पूरा पेपर आप आपका ही पूरा है, ठीक पेपर है? देख सकते हाँ हो जब तक आपका पेपर आवर है। हाँ 2 बिफोर घंटे वन का पेपर है तो हाँ आपको सारे क्वेश्चन दिखेंगे। yes before submitting you can do हाँ whatever you want to do with the paper. You have to select at the end of the paper. You just have to select 4, maximum 4 you have to have. अदर सी अगर आपने 5 में से 3 में अगर आपने सिलेक्ट कर दिया है ना गलती से तो वो आपको सबमिट ही नहीं करना चाहिए, तो आपको बाकी के डी सिलेक्ट करने पड़ेंगे जहां भी आपने गलती से कर दिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के, ठीक है? समझ रही है दीपाली जी? यस सर, ये जीपैट समान होता है क्या कि फार्माकोग्नोसी के इतने क्वेश्चंस इसी में से चूज करो, ऐसे सब्जेक्ट वाइज होता है? इसी में से चूज, हाँ ऐसा ग्रुप होता है ना, बायोकेमिस्ट्री के होंगे तो जितने भी उसके 18-19 क्वेश्चन है तो ऐसे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद का सेक्शन, बट यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस एज पर योर कन्वीनियंस, बट मैक्सिमम you can select 2 subjects only. उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आप सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको वो सबमिट नहीं करने देंगे। जो 5 सब्जेक्ट दिए गए उसकी बात है, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड तो करना ही है, उसको भूल जाइए, साइड में रख दीजिए, ठीक है? बट उसके बाद जो 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं दैट वुड इवन द सीक्वेंस इज लाइक दिस: बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो इस सीक्वेंस में से आप स्विच कर सकते हैं और उसमें से कोई भी 2 मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर पाएंगे एंड देन नथिंग कैन बी डन, उससे ज़्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है? हाँ जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा आते हैं वो अटेम्प्ट करो। एग्जैक्टली साक्षी मैम इज सेइंग दैट सिंपल है ना, आप देख सकते हैं ना कि आपको कितना आता है। आप फर्स्ट यू गो थ्रू द पेपर फॉर 5 minutes, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट
whether I'm getting it or not. If not, then check all and then go for it. Biology, yes, ecology and evolution comes under biology, and I myself had given, but I had my personal reasons. No, I wanted to go for something else, but it won't give you, it won't help you in this pharmacy that much. तो that न्यूमेरिकल के कितने क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली? ओके, 65 questions are there, right? Okay. Depends on the subject actually which you are selecting, because if biochemistry is there, there will be a lot of questions. Food technology, botany में भी होते हैं. So 6 to 12 I guess. 6 to 12 हाँ chemistry में होंगे यार. What would you say, Sakshi? 6 to 12 I guess. एप्टीट्यूड नहीं ज्यादा ज़्यादा ही, क्योंकि होंगे ना? एप्टीट्यूड में हम लोगों को वो सॉल्व करना था दिमाग से, Yes, that will वेरिएबल्स all वाले be also क्वेश्चन be एंड considered under, yeah. हाँ, So I just और skipped that. एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चन हमें आए थे ना, जो Yes, इंटरसेक्ट yes, करेंगे या नहीं करेंगे yes, लाइन yes, सेगमेंट, yes. वो फिर बियर लैम्बर्ट में से आया था. देन क्रोमेटोग्राफी नहीं, वो आया था रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन टाइम एंड ऑल, आरएफ फैक्टर फाइंड करने वाला आया था. केमिस्ट्री में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आया था. Yes, yes, तो yes. ये बढ़ जाता Electrochemistry. है हाँ. एक्चुअली, रेशियो केमिस्ट्री में है और एप्टीट्यूड में रहता है. हम्म. 10th का मैथ्स लीनियर इक्वेशन करके एक चैप्टर आता है 10th में, वो सॉल्व करके जाओगे तो हो जाएगा वो एप्टीट्यूड. हमारे टाइम में तो उसी में से पूरा आया था. Approximately 15 to 20 can we say? हाँ, उससे Okay. ज्यादा नहीं होगा. हाँ, क्योंकि इतने भी नहीं होते कि आप मतलब, हाँ. और सब्जेक्ट पे भी डिपेंड इजी करता है ना. है. कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट अगर आप पसंद कर रहे हो तो देन वोंट बी दैट मच ऑफ. जूलॉजी में इतने नहीं होते, मैं जैसे बोलता. अ, बट ज्योत्सना, हाँ. आप अपना माइक ऑन करके सिलेक्ट करके आप हमें एक्सप्लेन करिए कि आप एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रही हैं. हेलो. हाँ. ओके. माइक गेट्स ऑफ in between. So I have a lot of good experience in mic. Yeah. If we select for combination of papers, we will get all PYQ is available. It will be available on the site of the IIT Kharagpur itself और कानपुर, जो भी अभी ले रहा है ना, दोनों की साइट पे अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पूरा का पूरा पेपर उन्हीं की स्टाइल में आई गेस अवेलेबल है. व्हाट डू यू से? I think there is availability. Some student had also हाँ, asked me that PYQs, are they available on the site of the? They were once. I don't know currently if they are having or not. Sakshi? ज्योत्सना आपका शायद डाउट रह गया. जोशिता. हाँ, Joshita, please speak up. We are not able to get what you एक्सक्यूज are. मैम, Yes. यस. एक्चुअली वो फॉर्म फिल करते समय ना मैम एक्चुअली पूछते हैं पेपर कि लाइफ साइंस में आप 4 सब्जेक्ट है, यू सिलेक्ट 2 क्वेश्चन. आई हैव सिलेक्टेड बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी दिस टाइम, एंड पीडीएफ में भी दिया हुआ है, यू हैव टू चूज अ सब्जेक्ट. हाँ, यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट. बट हमारे टाइम में ऐसा था कि हमें पूरा पेपर देखने मिलता है, जितने मतलब जितने सब्जेक्ट है ना लाइफ साइंस के अंडर, 5-6 जो भी है, हम पूरा पेपर देख सकते हैं. एंड वहाँ हमें अगर जो सब्जेक्ट में आ रहा है, समझो मुझे वहाँ जाके, मैंने समझो दिमाग में रख के गई कि मैं माइक्रो करूंगी, लेकिन मुझे माइक्रो के नहीं आ रहे और मुझे फूड टेक के ज्यादा आंसर आ रहे हैं. हो सकता है कि मैंने कहीं जहाँ जहाँ से पढ़ा होगा मुझे फूड टेक के ज्यादा, तो मैं फूड टेक के अटेम्प्ट करके आऊंगी. और कभी कभी लोग क्या करते हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं जितने भी सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत फ्री टाइम लगता है. तो फिर हम चेक करते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में हमने ज्यादा अटेम्प्ट की है, तो हम वो करते हैं. Hmm. अभी आप लोगों को ऐसा तो नहीं बोला होगा, मे बी पॉसिबली. बाकी लोगों ने जिन्होंने इधर गेट फॉर्म फिल किया है, कि आप लोगों को पहले से सिलेक्ट करने बोला है कि यू हैव टू अटेम्प्ट बायोकेमिस्ट्री ओनली इन लाइफ साइंस एंड माइक्रोबायोलॉजी ओनली इन लाइफ साइंस. प्लीज स्पीक अप फॉर योर क्लासमेट. Okay. And I मैंने guess अगर दिया भी है तो उन लोगों ने शायद टेम्पररी बेसिस पे देना चाहिए, क्योंकि हाँ now you हाँ want to go for it and you can switch it.
during the exam. जैद आपको शायद Yes. मिसकम्युनिकेशन हो गया है, Just check it once and बाकी please सब send सही है. that screenshot of your form. Okay. Okay. We Actually, two subjects are compulsory, and two you have to choose there. But you have full right to see all the question. आपको आ yes, रहे हैं yes, नहीं आ रहे वो सब. definitely. And yes, Sakshi ma'am, this PYQ हाँ. thing. Do you know it's available or not? Like for like before a month, I guess they were there. मैंने एक्चुअली मेरे को बेनिफिट हुआ था जब यूट्यूब पे कोई एक चैनल है जिसके अंदर उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एंड मैक्सिमम उसी में से हमारे पेपर में आया था. You अगर आप said लोगों that. को पता होगा, Yes. हिस्टामाइन वगैरह का पीके वैल्यू वगैरह आपने बायोकेमिस्ट्री में देखा होगा, नहीं तो उसमें है, सत्यनारायण में है एक पूरा सेक्शन कैलकुलेशन का. वो क्वेश्चन आया था हमारे टाइम में, इजी फॉर्म में आया था, प्रीवियस ईयर में हार्ड में आया था, तो मेरे से सॉल्व हो गया क्योंकि मैं यूट्यूब पे करके गई थी. Yes, तो yes. I जस्ट had वही टाइम में also एक वीक. studied from YouTube. Yeah. बट वो सॉल्यूशन करवाते ना तो हमें ज्यादा नॉलेज मिलता है. हम Yes. लोग अगर क्वेश्चन आंसर कर ले तो उससे इतना बेनिफिट नहीं होता जितना वो लोग सॉल्यूशन करवाते हैं. Mhm. तो हमें एक्स्ट्रा Currently, नॉलेज मिल जाएगा. yes, currently we are not having any plans related to that, so you can search through the YouTube. It's okay. It's not like you should go for like just come to us only. You can take knowledge from anywhere. So that's the thing. And full attempt करके हे भगवान, पहले प्लीज जोशी था, प्लीज स्पीक अप. We are not getting what you are saying. Please. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट नाउ आल्सो. अभी भी Yes, na? अवेलेबल है हाँ जो ना? हाँ. जोशिता बोल. हाँ. No, no, Joshita, that if we select for combination something like that, I don't know what she's trying to say anything. Anyways, please speak up whenever you feel. Just, if your mic is having problem. Anyways, एनी अदर डाउट? फुल अटेम्प्ट करके आना है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको जितना आता है उतना करें आप. बेर मिनिमम करके आए प्लीज, कि 30-35 मार्क्स तो आ ही जाए. ठीक है. जस्ट तो एक चीज देख हाँ. लेना कि आप लोग जो एमसीक्यू देख रहे हो वो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन में इफ सोहम यू रिमेम्बर इंसुलिन के अंदर चारों ऑप्शन करेक्ट थे. बहुत बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं वो लोग. हाँ, तो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन ध्यान से करना. Yes, मार्क्स कट उसमें होते हैं क्योंकि चारों भी करेक्ट हो जाते हैं और हम लोग को लगता है तीन ही राइट ऐसा होंगे नहीं होता ना. और हाँ, एक हाँ, एक. हाँ. इवन वन कैन हाँ. बी देयर. हाँ, इट्स नॉट लाइक. हाँ एग्जैक्टली, तो ये ट्विस्ट हो जाता है पूरा वहां पे. तो इसका मेन प्रॉब्लम यही है कि एंड न्यूमेरिकल आते हैं तो कॉन्फिडेंटली कर दो. एंड थिंक एंड सी, कॉन्फिडेंट का इसमें सवाल ही नहीं है ना, कि इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग यू हैव टू गो फॉर इट, बट यू हैव टू बी हाँ वेरी शार्प. एग्जैक्टली. यू हैव टू बी वेरी शार्प. एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करके हाँ, आओ. बिकॉज यू आर, सी, इफ यू गेट इट you will get 2 marks, and the loss is very हाँ. high if you don't do it right. So the risk is worth taking, and there's no risk actually if you go for, if you see, because 2 marks से ज़्यादा जाएंगे नहीं आपके. ठीक है. It's like a normal question, we can say, without any negative marking. NAT same आता है तो कर दो, पर उसमें डेसिमल पॉइंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इनको बताया कि अगर 4.257 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, एंड इफ दे से अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द, that according to the rules of mathematics, 4.26. That is the thing. Otherwise they won't give you mark. So be very sharp while giving answers of MSQs and NATs. There will be a range of NAT they will give. It is not like कि यही आना चाहिए, but पिछली mostly बार 33.9 था फॉर जनरल कैटेगरी no, no. Okay, एंड किसका 19 बोल रहा है? मार्क्स था फॉर एसटी. Yeah. So, okay. ये स्पेसिफाइड होगा ना कि क्वेश्चन एमसीक्यू? हाँ हाँ, ऊपर लिखा होगा पूरा. एवरीथिंग विल बी clearly mentioned. Okay, Varshita is saying it is available, and please clear your earlier doubt by asking it out loud. Or, ओके गाइस, अभी yeah. अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो क्या ही फायदा हुआ मीटिंग का. सबके सब अपने डाउट That पूछ is लो. the thing. क्लियर हो गया This तो is मैसेज में the, लिख दो कि क्लियर हो गया. I would say first or last time we will get this much of time, right?
two paper combination. बताओ. So I would say with two paper combination simple hai. There would be, you know, if you don't get in via one route, you can go for other one, but it only helps you if you are good at least one of it or both of it obviously. So if you don't get, अगर आप एक दो मार्क्स से रह जाते हो तो फिर then you can go through other route and you can get qualified. But other than that, it would increase your burden. That would I say. That I would say. Because you have GPAD, you have GATE. आप कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दिया था. दैट वाज नॉट, आई डिड नॉट गेट क्वालिफाइड. ओके, या दैट इज आल्सो ट्रू. In ecology and evolution, I did not get qualified, but I got qualified in life sciences because I was having good basics. Basics are very important. What are the, okay sir, as it is tougher, I thought cutoff will be low for two. No, it is, so two paper are different entities totally. You just have a chance to give them, so that your chances of getting it qualified gets increased. Otherwise both are two separate entities. आपके साथ बाकी कई सारे लोग देते होंगे जो है, जो अगर, स्पेशलाइज्ड है वो सब्जेक्ट हाँ में. हाँ. इट इज नॉट लाइक कि आपको, आपने दो लिए तो आपको कोई कंसेशन कंसेशन मिलेगा, ठीक है. So that is the thing, and we won't get any time, like next time there won't be any next time when we will be able to talk to you guys like this. So please be open open up. Yeah, fee double हो जाती है. Yes, exactly. अभी लिखना बंद कर दो सब और बोलो, चलो. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ राइटिंग हियर. पढ़ना नहीं है मेरे को. हाँ, क्लियर. आयुष सर यहाँ पर है या शायद शायद उनके, लेफ्ट हो गए. उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी तो कोई बात नहीं. इट्स ओके. Okay. I can see new names in the meeting today. जो पहले मैंने, तुमने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर देखे हैं क्या, जो लोग न्यू है यहाँ पे? माइक्रोबायोलॉजी, हॉस्पिटल फार्मेसी, डू यू नो मी? तब तक गेट के आप लोग को डाउट जो आ रहा है वो सोच लो. Okay. I don't think any doubts are coming. So still, if anything is there, you can text us. And can you suggest any YouTube channel? There is something L या V से कोई नाम था. मैं, क्या नाम था? Share it in the group. I mean, हाँ, to ये. that what's the name? Ashma. Please text ma'am personally. She'll share it to you. हाँ, I will. Are you from LM? Yeah. Okay, personal questions पूछे जा रहे हैं अभी धीरे धीरे. Yes, I was a student of it. Anything you want to ask related to? गेट सेशन है तो सब लोग खुल रहे हैं, वो दरवाजे ऐसा मैंने बोला था ना, ऐसा सब ज्यादा खुल रहे हैं सब. हाँ. एप्टीट्यूड के यूट्यूब पे सब है हाँ ईशान, लाइक हाँ ओनली हाँ. वन. मैंने तो गेट में केमिस्ट्री था, इसके लिए केमिस्ट्री का प्रिपरेशन किया था, जीपेट का भी हो गया था. वैसा कुछ एकदम नहीं, यूट्यूब पे सब है. उल्टा एप्टीट्यूड सेम नाइपर में भी आता है, हमारे टाइम पे नहीं आया था, हाँ. लेकिन उससे यूट्यूब में से ही प्रिपरेशन हो जाता है. हम्म एकदम कुछ हार्डकोर नहीं होता. हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रिपरेशन करोगे तो हम्म. सब हो जाएगा. And the thing is, even after getting it, there will be totally new thing. So you just न्यू have to न्यू. make your brain, adaptive to what is being 10th shown. की मैथ्स की बुक के लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, बस हम्म उसका वो थ्योरी पार्ट एक दो सम कर हम्म. लेना, आ जाएगा. जैसे नहीं वो होगा, हमारे माइनस टाइम पे एक्स वाई वाले सम ज्यादा आए थे. माइनस बी वाला फॉर्मूला वो. हाँ 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 वो हाँ. सब. हाँ. इंटरेक्शन होगा नहीं होगा, पैरेलल होगा नहीं होगा, कोई वगैरह भी आप वगैरह. कैट की एग्जाम्स जो देते हैं ना, उनकी बुक्स में से भी कर सकते हैं. गेस वो रीजनिंग और वो सब थोड़ा बहुत वो भी मतलब उस टाइप का आता है, वो बेसिक्स जो होते हैं ना. मैंने मतलब एक दो. हाँ हाँ, मैं तो तुक्का लगा कर आऊंगा, जीपेट भी नजदीक.
बी स्मार्ट, ये स्मार्ट मूव था गेट का एग्जाम देने का। अभी वो हो जाएगा। आस्क मी, आई 0.9 मार्क्स से मेरा क्वालिफिकेशन रह गया and बाद में जो डिप्रेशन हुआ, मतलब Yes. कि So at पॉइंट least नाइन उससे मेरे को 1 मार्क की कीमत पता चली कि आई कुड हैव मेक 4, मैंने 4 क्वेश्चन डम मिस्टेक की थी। तो 0.9 मार्क्स से रहना इज टफ। अभी तो बोल देते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आता है और अपने फ्रेंड्स के क्वालिफाई हो जाते हैं, तब पता चलता है कि हो जाता अपना, तो अपने को जीपेट में टेंशन कम रहता। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं हर बार मेंशन करता हूँ दैट आई डिड नॉट नो कि इसके ऊपर से नाइपर में मिलता है। आप लोग लकी हो कि आपको एक्चुअली पता भी चल रहा है। ओके, यस जैद। हाँ, हाँ सर, एक्चुअली एनपीटीएल के बारे में पता है क्या? एनपीटीएल फुल फॉर्म एनीथिंग यू कैन लाइक, व्हाट इज इट? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट, और एक्चुअली इस साल ना वो प्रोवाइड करे गेट प्रिपरेशन में। अच्छा, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे एनटीपीएल गेट प्रिपरेशन, तो वहाँ पे फुल प्रिपरेशन वीडियो अवेलेबल है, वो सबको हेल्प हो जाएगा। एनपीटीएल गेट प्रिपरेशन इट्स वेरी गुड बाय गवर्नमेंट। परचेज इफ इट इज दैट। कोर्स लग रहा है इट इज मुझे फ्री ऑफ स्वयं पे कॉस्ट, है। इट इज फ्री ऑफ इट इज कॉस्ट। फ्रॉम गवर्नमेंट, देन आई डोंट थिंक ओके इट्स ओके गाइस। यस वीडियोस साक्षी। का सेट भी अवेलेबल है, केमिस्ट्री। ओके, अच्छा देख लेना आप लोग, ये अच्छा है, बात है। लिंक शेयर कर देना, सो हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देना ग्रुप में टाइप करके। ठीक है, ठीक है। So be smart and please थैंक give the यू। exam. Okay, thank you very much for asking question. It is very like it would help other as well. And please encourage your friends to give this exam. It's very difficult to make them understand that what is the value of gate. But when once the NTA हाथ खड़ी कर देती है ना, जब तब पता चलता हाँ है. So learn from us our mistakes and. Okay, if any doubt, you can contact us anytime. There is no problem in that. पर जीपेट को पहले वैल्यू देना, Yes, yes, बिकॉज जीपेट definitely. की वजह से और भी एंट्रेंस देनी है। अभी आप लोगों का मैं देख रही हूँ, रोज सर बोलते हैं ग्रुप के अंदर कि आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे, सीरियस नहीं हो, लेक्चर नहीं देख रहे। पर यार ऐसे मत करो, मैं बता रही हूँ। मतलब ये तो तुम लोगों को सच में एकदम डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने सब भुगत किया है ना, वो लोग बता रहे हैं कि ये पढ़ो ये पढ़ो। मतलब मुझे तो नहीं बताने वाला कोई था कि ये ही पढ़ना है, यही पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़ लो, 3 ही मंथ दिसंबर पकड़ के चलो। सीरियस अभी नहीं रहोगे ना, तो जो अभी स्टार्ट करेगा ना कि रैश कोर्स से लेके, वो फिर निकल लेगा। फिर आप लोग बोलोगे 1 साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर अभी रेस वो हेयर एंड द रैबिट वाली कहानी में हेयर ने लास्ट तक नहीं छोड़ा तो वो जीत गया, वो भी छोड़ दिया तो वो हार जाता। तो समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेसी कंडीशन इन द वर्ल्ड इज नॉट ग्रेट, एटलीस्ट इन इंडिया। Yes, definitely. So another thing is, see, if I would say I was in a class like you guys, कि मैंने ये 1 डेढ़ साल तक मैंने ये क्लासेस ऐसे किए थे। सभी लोगों ने किए होंगे, साक्षी ने भी कहीं ना कहीं आई गेस किया, ना किया हो डजेंट मैटर। बट द थिंग इज वी थिंक दैट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, देन वी विल सी इट लेटर ऑन एंड we have time. But it's not like that. If you are present in class, it makes a huge difference from the people who are just doing it from the videos, recorded videos. So vast difference. बी ठीक है? डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन से तुम लोगों के अंदर काफी चेंज आ जाएगा। आज टेस्ट है अभी दो, ऐसा 2 घंटे बाद देंगे वो वाला एटीट्यूड भी हटा दो। आज लेक्चर है अभी अटेंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक मेरी खुद की मेन एग्जाम्स होती थी, तभी मैं पढ़ रही होती थी जीपेट का जितना भी टाइम मिलता था, क्योंकि जीपेट को प्रायोरिटी दोगे तो ही तुम्हें वो मिलेगा। ट्रस्ट में 50,000 पीपल के अंदर 4,000 क्वालिफिकेशन हो रहे हैं। Yes, yes. डरा नहीं रही, हकीकत बता रही हूँ। So just change your attitude a bit. So we are not even a bit भी क्या बोले, अभी तो टाइम ही आ गया है, क्या चेंज। और एटलीस्ट ट्राई एंड गिव। हाँ, एक इंटरव्यू देख लो, कोई हाँ, भी जगह पे जॉब के लिए एक इंटरव्यू में देखो, जब पता चलेगा 10,000 12,000 पर मंथ मिल रहा है और खर्चा 10,000 12,000 से ज्यादा हो रहा है, तो फिर पता चलेगा कि क्यों जिपेट देनी और क्यों ना पर आना। और कोई फायदा नहीं है, प्लेसमेंट ही चाहिए सबको। very Well, ma'am, competitive, very competitive. Yes, Samir, hi.
How are you doing? Hi. Even I would like to add this thing. Yes, मैं yes. आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आप लोग जैसे टेस्ट देते थे तो कितना टाइम लगता था आप लोगों को ऑन एन एवरेज पूरा पेपर कंप्लीट करने में? हमें पूछ रहे हो आप? मतलब मुझे और हाँ साक्षी को? हेलो? हाँ, तो हम हाँ, आपको और साक्षी मैम को एक्चुअली पूछ आवाज़ रहा नहीं था। आ रही ना, थोड़ी 1 मिनट। हाँ, तो आप बोल रहे हाँ ओके, मतलब 3 घंटे का पेपर है तो हम लोग आई गेस 1.5 आवर 2 आवर में डिपेंड। मतलब हाँ एक बार में पेपर को पूरे 125 क्वेश्चन देखने में 1 घंटे से तो ऊपर नहीं नहीं लगता नहीं, ही इससे है। ज़्यादा आई डोंट थिंक। हाँ। बट मैंने यहाँ पे जब हम लोग मार्क्स वगैरह फिल करते हैं एंड रिपोर्ट चेक करते हैं तो ये देखा है कि लोगों का मतलब आधे आधे घंटे के अंदर हाँ कैसे वो हाँ लोग पूरा हाँ पेपर हाँ, कर रहे हैं। मैं वो हाँ, मैंने भी मेरा देखा है, मैंने भी मैं उन्हीं देखा कैटेगरी में से हूँ। मेरा आधे घंटे में 40 मिनट्स तो मैक्सिमम मैं देती थी। मैं बहुत फास्ट करती थी सॉल्व। उसका बेनिफिट अब भी नहीं, मतलब मैं फास्ट सॉल्व करने में बिलीव रखती थी। मैं डबल चेक ट्रिपल चेक मेरे से होता नहीं था, इतना पेशेंटली मैं बैठती नहीं थी। हावेवर मेरे ही फ्रेंड्स थे तो 3-3 घंटे बैठते थे है। पेपर लेके। But वो see, ठीक है, मतलब I सबका am अलग on अलग। a moderate side. I would say 1.5 hour, 2 hour. But whatever you do, इवन please हाँ, guys. मुझे भी वन एंड हाँ हाफ से 2 घंटे हाँ, के बीच एक लगता था मतलब जस्ट हमारे सर भी बोलते थे चेक करने के लिए कि भी क्या एक करो वजह से कि 1 घंटे में जस्ट। पूरा हाँ 125 क्वेश्चन हाँ देख लिए, फिर जो हाँ। नहीं बन रहा है उसको सेकंड उसमें करो। बट मैं ये बहुत मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज कि काफी सारे लोग ये नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम्म उनके एंड उसके कारण नेगेटिव मार्किंग भी हम्म होते हैं एंड वो लोग हम्म क्वेश्चन पता नहीं आधे छोड़ के अटेम्प्ट हम्म करते हैं। हम्म उनका जो हम्म ड्यू टाइम रहता है क्वेश्चन समझते नहीं है या क्या है। तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि गाइस जो भी अभी ये सुन रहा है ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि अगर हाँ हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम क्वेश्चन इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आप उसको 2 सेकंड में देखो, कुछ भी आंसर करो एंड तुक्का मार के आगे बढ़ जाओ। एटलीस्ट आपको हर क्वेश्चन में 15 सेकंड का तो टाइम। अब बहुत छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है तब अलग बात है कि 5 सेकंड के अंदर हो रहा है वो, लेकिन मैंने असर्शन रीजनिंग मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन भी देखे हैं जो लोग 2-2 5-5 सेकंड में 10-10 सेकंड में कुछ भी कर रहे हैं। तो वो चीजें थोड़ा अवॉइड करना। हम्म। और एक्चुअली हम सब तो ट्विस्ट करके ही डालते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन इतने एक देना एक दो मना दो ही दिन किया तक हुआ बना के पूरा इतना डिटेल्ड वो सब जगह से प्रूफ रीड करके बनाते हैं। देन हाउ यू guys are able to solve it in 15 seconds? That is a miracle. If it is happening, then you should teach us. That is the thing. So I'm not just it's I'm just kidding about it. But see, even when I was in that academy and everywhere, teachers used to say that at least give 1 hour to just go through the paper, just read it, like whatever, what kind of questions are there, how the level of difficulty is also very much useful when you go for it, right? That how much question you have to attempt. If it is very difficult, then you can go for a less number of questions, like 80, 85, 90, like that. If it is easy, then you have to definitely go more than 100 or 110. That is the thing. So think हाँ, about these things. अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों बढ़नी चाहिए। Yes. बहुत फर्क पड़ता है। चलो अभी और किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू गाइस आई थिंक सोहम एंड समीप विल एग्री के लीव द Yes, yes, definitely. Uh, मुझे एक चीज और ऐड करनी है। यस यस समीप सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चन, अभी भी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। आई थिंक सारे टीचर्स आपको ये बोल रहे हैं कि जो नॉट वाले क्वेश्चन है, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इनकरेक्ट है, उसमें आप लोग ज्यादा टाइम दो। बिकॉज वो क्वेश्चन एकदम जो आपको hello. सीधा सीधा लगता है ना, उतना सीधा सीधा नहीं होता है। वो क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड होते हैं। अगर हम लोग ने वो क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग सोच समझ के ऐसा बनाते हैं कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन उसमें क्रिएट हो। ठीक है, वो चीज थोड़ा जान के भी हम लोग करते हैं। एंड उसमें मैं देखता हूँ काफी सारे लोग ना वो छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटी छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट करके मतलब वो करने लगते हैं एंड फिर उनके मार्क्स कम आते हैं। तो फिर उनको लगता है कि यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ अगली बार से। तो ये चीजें थोड़ा आपको अवॉइड करना है। एंड मैंने एक चीज बोली है, अगर आपको अभी
मतलब अभी थोड़ा सा टाइम, थोड़ा तो नहीं मतलब बहुत कम टाइम है अभी, 3 months हार्डली आर लेफ्ट। तो रिस्क लेने की बात बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो अभी आप रिस्क ले सकते हो पेपर में, क्योंकि अगर आपकी रिस्क अभी नहीं होगी तो वो रिस्क आपको कहाँ लेनी पड़ेगी, वो रिस्क आपको जीपैट में लेनी पड़ेगी और वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अभी आप ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि आप 100 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है। अगर गलत भी है क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि मेरी यहाँ पे क्या गलती है। तो थोड़ा बहुत रिस्क अभी लो, 90 to 100 क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो। एंड हाँ, उससे ज्यादा मैं सिर्फ तभी करो अगर बहुत अच्छे से बन रहा है, तो ये रिस्क जीपैट में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीपैट में आपको बिना रिस्क के आराम से 90 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप अभी थोड़ा पेपर अच्छे से। There was a see. I would like to add on this. Samip has said good point you have touched. That once initially there was a question by me that is in biotechnology. There was a question which is that which base is not present in DNA. That was adenine, thymine, and uracil I had given, which is wrong answer, right? I mean, which is the answer, but it is not present in DNA. So वो जो भी है मैं नाम नहीं लूँगा, वो स्टूडेंट ने वो कुछ 5-10 सेकंड में कर दिया था, मैंने देखा, और उसने वो कुछ थायमिन या एडेनिन कर दिया। पर इतना आपको क्यों, मतलब इतनी जल्दी क्या है, जल्दबाजी? इतना इजी क्वेश्चन आप लोग अगर गलत कर रहे हो, देन आई देयर इज नो चांस दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द गेट द मार्क्स इन दैट टफ टफ क्वेश्चंस क्वेश्चंस, जिसमें राइट? ट्विस्ट किया हुआ है। What do you say about this, Sakshi? I mean, this is not a good thing to do. That 15, if हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है एक्चुअली। और लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट भी किया हुआ है और अगर आप लोग को नहीं देखते वो क्वेश्चन को या नहीं समझते, जैसे मैंने मेरे क्वेश्चन जब मैं दी थी एग्जाम्स के अंदर इनको, तभी भी मैंने बताया था देखो मैंने यहाँ ट्विस्ट दिया और आप लोगों ने वो गलती किया, और जो क्वेश्चन मैं चाहती थी ना गलत करे वो ये लोग गलत ही करते थे। इफ यू गाइस रिमेम्बर गौरव, ऋतिक, मैं, हाँ, अस्मा, याद आ रहा है आपको सीडोमोनस डिप्लोकोकस, और मैं या मतलब भूल गए सारा भाई? जिसमें हम मानते हैं कि गलत होगा वो तो ठीक है, पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जैसे मैंने बोला उसमें तो मत करो कम से कम। उसमें इतनी जल्दीबाजी वही क्या है? हाँ, दैट इज द वो आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस में कि ओके ये तो डीएनए का सवाल इतना इजी पूछ लिया, पर इजी है पर थोड़ा धीरे से करो। आपके पास पूरा मिनट देते हैं ना वो लोग, ज्यादा देते होंगे, तो फिर क्यों इतना आपको जल्दबाजी क्वेश्चन है? की हाँ, इज्जत करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये एग्जैक्टली। मैंने काफी एक सही इंसान ने कहा, मेरा नहीं है, हाँ, पर एक AIR 1 ने कहा था ये लाइन, और वो मेरे को सच में मैंने उसको अपना रूल बना दिया, क्वेश्चन की इज्जत करो मार्क्स मिलेंगे। यस यस। एवरी बॉल, वो क्रिकेट में आता है ना, एवरी बॉल कैन इट कैन टर्न इनटू अ क्लीन बोल्ड, सो दैट इज द थिंग। I don't think any questions are what is happening. Kitne questions? Okay, Sakshi has given good answer to that. Anything else, Samip sir, Sakshi ma'am? ना आई एम गुड, थोड़ा बहुत अब गेट के अलावा सबको भी पढ़ने का टाइम है। हमारा वो पूछना है जीपैट से रिलेटेड, तो हाँ, अगर किसी को कोई हाँ, क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदरवाइज गेट का है तो मतलब पूरा हमने कर लिया। गेट की काफ़ी बातें हो गई है, और जितना भी नहीं आता है आप लोग पहले वीडियो देख के आओ। मुझे बहुत ये थोड़ा बुरा भी लगा कि लोगों ने वीडियो नहीं देखी अब तक। But anyways, please check it out once, and I've given it in detail that what is the benefit and what can you do after it. So, anything else except gate, including gate, anything, any problem you have? If not, we will be ending in 2 minutes. 7:28 हो रहे हैं, Yes. 7:30 पे एंड कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो। फार्माकोग्नोसी में इतना चैप्टर याद नहीं हो रहा है सर। सर बताइए। सर ने कहा बोला कि पूरा चैप्टर याद कर लो। हाँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाते टाइम भी बताए हैं पूरी ड्रग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो माइक्रोस्कोपिकल फीचर है ना। आप लोग स्लाइड में देखो, मैंने खुद से माइक्रोस्कोपी के डायग्राम बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है
हाँ, एक गलती हो गई है, डिजिटैलिस के माइक्रोस्कोपी के डायग्राम में लेबलिंग उसमें सेना हो गई है, बट वो डिजिटैलिस का डायग्राम है, ठीक है। तो वो थोड़ा सुधार कार्य कर लेना सब लोग। वो तो बच्चे फिगर आउट कर लेंगे ना, मतलब अभी तो उनका काफी कुछ वो पता चलना हाँ चाहिए अभी कि बस कैसे ट्राइकोमा है और क्या है। हाँ, तो फिर तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेन आपको हर एक ड्रग की हर एक चीज पढ़नी जरूरी नहीं है। मैंने हर लेक्चर में हर ड्रग में बताया है, अगर 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट में से किस ड्रग की माइक्रोस्कोपी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माइक्रोस्कोपी में क्या कैरेक्टर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे चलो कोई यहाँ पे बताया, अगर किसी को याद है तो, सिनेमन में किस टाइप की मेड्यूलरी रेस प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप लोग। अरे ये एरल कहाँ से आ गया भाई भाई? अचानक लोगों को जायफल क्यों याद आ रहा है? सिनेमन, सिनेमन, नटमेग नहीं। हे भगवान। सिनेमन मतलब दालचीनी, सिलोन हाँ, सिनेमन या सिनेमन। चलो बाय सीरियट मेड्यूलरी रेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये देखो आगे पार्ट पीछे सपाट टाइप का हाल है आप लोगों के साथ। तो जो चीजें होती जा रही हैं, ये नहीं है कि बस जो चीजें सिलेबस आगे बढ़ रहा है, कोलॉजी की क्लासेस लग रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस लग रही हैं, तो आप पुराने टॉपिक छोड़ दोगे, ठीक है। ये नहीं करना है किसी को भी। जैसे अभी देखो इतने लोग हैं यहाँ पे, 15 लोग हैं आई थिंक, एंड एक का आंसर आया, चलो ठीक है उसका आंसर गलत आया, बट उसने आंसर तो किया, बाकियों ने तो किया भी नहीं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप आज कुछ चीज पढ़ रहे हो तो आपको आज, जैसे मैं क्लास में पूछता हूँ, क्लास के बाद क्वेश्चन पूछता हूँ तो सब आंसर देते हैं, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन वही चीज अगर मैं किसी दूसरी क्लास में पूछता हूँ तो नंबर ऑफ आंसर्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से नहीं चल रहा है। तो चैप्टर याद नहीं करना, मैंने कोग्नोसी की क्लासेस में भी हमेशा बोला है, कोग्नोसी को कभी याद करने की कोशिश मत करना। कोग्नोसी याद करने की कोशिश करोगे वो याद नहीं होगी। किसको आप बताओ ना, कोई ऐसा है जो 100 ड्रग के बारे में हर एक चीज याद कर लेगा? किसी को नहीं, मेरे को खुद नहीं है याद। अभी तुम मेरे से पूछ लोगे किसी भी एक ड्रग के बारे में पर्टिकुलरली, तो एकदम से नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड चीज मैं बता सकता हूँ, है ना। तो आप लोगों को यही मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोग्नोसी की ड्रग्स याद मत करो। क्या करना है आपको, उस चीज को बार 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 पढ़ना है। मैंने रिवीजन वाली टेक्निक भी बताई थी, कि आप लोग एक वीक में एक बार पढ़ो, मतलब जिस दिन क्लास हुई है उसके बाद एक बार पढ़ो, फिर क्लास टेस्ट के पहले विद इन अ वीक पढ़ो, एंड थर्ड रिवीजन करना है आपको विद इन अ मंथ। इसके बाद फिर हर 15-15 डेज में आप थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करते जाओ, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी आंसर टिप ऑफ द टंग हो, लेकिन आपको रिलेट करेगा कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे फार्माकोग्नोसी को याद करने का यही तरीका है। फार्माकोग्नोसी में बिल्कुल आप, ये नहीं हो सकता कि जितनी ड्रग्स हैं 30 ड्रग्स एल्कलॉइड की, 30 ड्रग्स ग्लाइकोसाइड की, 30 ड्रग्स वोलाटाइल ऑयल की सब बन जाएंगी आपको। नॉट पॉसिबल। वही बात है ना कि इसमें क्या है कि नॉलेज कम हो पर पूरा हो। ये बात है कि जो जिस भी ड्रग का आप पढ़े वो उसके बारे में आपको पूरी मतलब ठीक से जानकारी होनी चाहिए, तो आप कम से कम एलिमिनेट तो कर पाओगे ऑप्शंस। वरना आपको पता ही नहीं होगा तो कंफ्यूजन इनटू मतलब डबल हो जाएगा वो, कि आपको ये भी नहीं थोड़ा थोड़ा पता है ये भी, तो फिर जब वो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे तो आप उसमें से फिगर आउट नहीं कर पाओगे या एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। सो बी क्लियर विद द एस्पेक्ट्स वॉट एवर यू आर स्टडिंग, it applies to all of the subject, it's not to just limited to cognosy, can be applied to any subject. And yes, ma'am is saying that be interactive, so please be interactive. ऑल्सो जो सब्जेक्ट होते जा रहे हैं वो सब्जेक्ट बिल्कुल मत छोड़ो। जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कंप्लीट हो गया है, तो ये नहीं करना है कि हो गया है बस अब बाद में पढ़ेंगे, नहीं, उसको साथ ही साथ लेके चलो। अदरवाइज एकदम से अगर आप पढ़ोगे ये चीज
नवंबर दिसंबर के एंड में, तो आप लोगों को खुद भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका होगा आपको वो चीज छोड़े हुए। जैसे माइक्रोबायोलॉजी आई थिंक साक्षी मैम ने काफी पहले करवा दिया है कंप्लीट, तो उसको भी रिवाइज करते चलो साथ ही साथ। यस, एंड बायोटेक में भी थोड़ा इश्यू आ रहा था सबको लास्ट टू जो लास्ट के दो सेशन हुए, at that time we were also too much of in hurry. So I would like to say that if you still have any doubt in that section or anywhere, you can anytime ask me about it. There will be test, तो उसमें से भी आपको काफी चीजें रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना सेशन की? कौन सी ये हो रही है? हाँ। यस यस, और आवाज के साथ हो रही है इस बार। मैं 3 बार चेक कर चुका हूँ। हाँ, तो मेरे को हर बार डर रहता है कि आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। वो दिमाग में एक बार जो अनुभव हुआ भूमिका मैम के साथ भी सेम आई गेस हुआ है वो। सो आई डोंट नो, समटाइम्स ओबीएस please upload. Yeah, we will upload somewhere at least, if not on that site, or we will provide it to you in any manner. So if it's there's no any questions, we can end the session. Samip sir, Sakshi ma'am, hand it Yeah, we over are to good you. to go. कर Yes. सकते हैं एंड, कोई प्रॉब्लम नहीं Okay. है। Okay. Thank you very much for joining us. Sakshi ma'am, Bye. Ayush sir is not here, but I would like to say thank you to him. Despite of being ill, he joined. And Samip sir, thank you very much for joining and guiding us through it. Okay. Good night, and all the best for the upcoming exams and everything. I'll try to provide it to you within some time, as soon as we figure out how we are going to give it to you this session. Okay, thank you. Bye, good night.